नहीं है, पर उसे स्मार्टली यूटिलाइज करना आना चाहिए। बस तुम ग्रेस पढ़ रहे हो, तुम एनाटॉमी में फेल हो जाओगे, बता रहा हूँ। Hello everyone, welcome to my channel, The Stats Guy. Myself, Vishnu Kumar Jha, currently studying at RGK Medical College and Hospital, Kolkata. And today I am going to discuss about one very important topic, one very important doubt, जो कि फर्स्ट ईयर के पास होता ही होता है, दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड वर्सेस टेक्स्ट बुक। गोल्ड स्टैंडर्ड, टेक्स्ट बुक, उसके बाद लेक्चर, उसके बाद नोट्स, क्या क्या मैनेज करें, मैनेज करना पॉसिबल है भी या नहीं, क्योंकि हर 3 महीने बाद एग्ज़ाम भी आता है, नोट्स भी बनाने होते हैं, पढ़ना भी होता है, रिवाइज भी करना होता है। और गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स जो होते हैं बहुत मोटे होते हैं, वो पॉसिबल करना वो क्या कहते हैं, उससे कंप्लीट करना पॉसिबल भी नहीं होता। तो मैनेज कैसे करें, मैनेज करना भी चाहिए कि नहीं, I am going to discuss about these things in particular. So let's discuss about anatomy, and this video is only going to be for anatomy only, because anatomy एक दहशत फैलाता है फर्स्ट ईयर में। तो anatomy का जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, दैट इज़ यू आर ऑल फेमिलियर विद दैट, ग्रेज एनाटमी। और जो टेक्स्ट बुक है वो BDC हो गया, विशिंग हो गया, बहुत कुछ है। तो डाउट क्या आता है कि भैया, मतलब जूनियर बात कर रहे होते हैं कि भैया ग्रेज एनाटमी हो गया, वो पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत बल्कि बुक है, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ऊपर से BDC और विशिंग जो है वो तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है ही। तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, ग्रेज एनाटमी पढ़ा नहीं जा रहा, मैं फोमो हो रहा है, दोस्त लोग पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वगैरह 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 वगैरह। So I'm gonna be direct about this video, that if you are not able to study Gray's Anatomy, but you are totally fine with the textbook and you are learning it properly, you are taking your lectures, you are studying your book properly, it's totally fine. Actually, you are gonna do better than those students who only focus on Gray's Anatomy. Let me tell you how. First of all, you have seen the thickness of the book. It is full of information, right? In the first year, you have to be smart enough to utilize your resources. You can have plenty of resources. You can have hundreds of resources. I can name you 10, 20, 25 books of physiology alone. See, but there is one mantra I would like you to follow. I would like you to keep in mind that whatever resources you are following, just pick one and follow it properly, follow it with your heart, and you're going to do better than those kind of students who are jumping over all the resources that are available to them. For example, मेरे पास विशिंग है, तो I'm going to study विशिंग, and I'm going to study BDC, and also I'm not going to leave Gray's Anatomy because I cannot live in FOMO, right? Fear of missing out. See, in the first year and second year MBBS, it's just a foundation. You are building the foundation for medicine. You are learning to understand the basics of medicine, and in the basic understanding, you actually do not need all the information that have been provided to you. In the BDC and Wishing, there are details, there are explanations, there are informations that is more than enough. Even if you follow Wishing or BDC properly, wisely, you are gonna be great in anatomy for first year. You will be great in anatomy. You're gonna get distinction. You're gonna have basic understanding very clear. But when you switch to Gray's Anatomy, solely on Gray's Anatomy, you are not following BDC, you are not following any textbook, but you are solely following Gray's Anatomy, there comes a problem. MBBS is an ocean, and you can take all you want, but you can also drown. And in Gray's Anatomy, there is a chance that you will drown in that ocean. You know why? Because first of all, the explanations जो कि दिए हुए हैं Gray's Anatomy में, वो बहुत डिटेल में दिया हुआ है, that you can measure with the thickness of the book. बहुत डिटेल में दिया हुआ है, और तुम बस वही फॉलो करोगे। सपोज कि यू आर स्टडिंग one particular chapter, then you are gonna give around 6 hours, 7 hours for that one particular chapter, ठीक है? And where are those hours coming from? That hour is coming from the time you could have given to biochem and physiology. Trust me, अगर Gray's Anatomy सीधा तुम पढ़ रहे हो, तो तुम फिजियो और बायोकेम से टाइम निकाल रहे हो,
ठीक है। और इससे होगा क्या कि वो पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसके उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाएगी। लेकिन इसी टाइम मतलब तुम फिजियो और बायोकेम पे टाइम नहीं दे पाओगे, इवन तुम पूरा एनाटॉमी खत्म नहीं कर पाओगे, तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे। हो सकता है ऐसा, देयर आर फ्यू पीपल ऑलवेज रिमेंबर, देयर आर फ्यू पीपल जो मैनेज कर रहे हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 95% ऑफ द पॉपुलेशन हु आर स्टडिंग MBBS इन फर्स्ट ईयर। और let's be real about this thing, that whatever we are studying to, you know what, crack PG, right? वो फर्स्ट ईयर से वो इन्वायरमेंट बना दिया जाता है, कॉलेज में हो गया, उसके बाद डिफरेंट कोचिंग सेंटर वगैरह हो गया, वो हमारे माइंड में बात डाल देते हैं कि यू हैव टू क्रैक PG एज वेल। और इसीलिए अभी से तुम अगर गोल्ड स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। गोल्ड स्टैंडर्ड बुक बुरी नहीं है, पर उसे स्मार्टली यूटिलाइज करना आना चाहिए। बस तुम ग्रेज पढ़ रहे हो, तुम एनाटॉमी में फेल हो जाओगे, बता रहा हूँ पास भी तो करना है। बट स्टिल देखो कि यू आर स्टडिंग, लेट मी कंपेयर टू पीपल। देयर इज़ वन गाय हु इज स्टडिंग ग्रेज एनाटॉमी सोली, ओनली ग्रेज एनाटॉमी, एंड देयर इज अनदर गाय जो कि ग्रेज एनाटॉमी से डर लग रहा है उसको, बस वो BDC पढ़ रहा है, क्लास के नोट्स ले रहा है, रिवाइज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो लेट अस कंसीडर कि एग्ज़ाम में 10 सवाल पूछे गए, 10 MCQ पूछे गए, बिकॉज तुम लोग वही समझते हो 10 MCQ पूछे गए एनाटॉमी से, और जो ग्रेज वाला बंदा है ही वॉज एबल टू सॉल्व 10 out of 10 MCQ। पर जो BDC वाला बंदा था उसने भी अच्छे से पढ़ाई की होगी ऑब्वियसली, हालांकि उसने पूरा मतलब जितना एनाटॉमी में ग्रेज वाले ने पढ़ा होगा ऑब्वियसली उससे कम ही पढ़ा होगा उसने, बिकॉज ही इज स्टडिंग BDC ओनली। सो उसने भी सॉल्व किया MCQ, बट ही वॉज एबल टू सॉल्व 8 or 9 out of 10 MCQ। बोले कि नहीं इससे भी कम होगा, नहीं होगा, बिकॉज मैंने कहा तो था कि टेक्स्ट बुक में भी मतलब देयर आर मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन दैट वुड बी आस्क्ड ऑफ यू, दैट वुड बी प्रोवाइडेड, दैट हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू। सो उस बंदे ने 8 या 9 सवाल सही कर लिए, तो जीता कौन? ऑब्वियसली ग्रेज वाला बंदा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जो ग्रेज एनाटॉमी पढ़ने में उसको टाइम लगा था वो मतलब जो BDC वाले बंदा था, वो BDC वाले बंदे को सपोज कि 10 घंटे लगे थे, तो ग्रेज वाले को 20 घंटे लगे होंगे ऑब्वियसली। पर उस टाइम पे तुम ये भूल जाते हो कि सवाल तो फिजियो और बायोकेम से भी आएंगे। तो जो BDC वाला बंदा था उसके पास इनफ टाइम था, बिकॉज वो एनाटॉमी रिवाइज कर रहा था, जो जितना इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होता था वो टेक्स्ट बुक से देख लेता था। उसके बाद जो टाइम बचा वो फिजियो और बायोकेम में इन्वेस्ट करता था, बिकॉज फिजियो और बायोकेम में आई वुड सजेस्ट यू टू स्टडी गोल्ड स्टैंडर्ड एज वेल। तो वहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रहा था। तो अब क्या होगा कि ही इज़ गेटिंग 8 or 9 MCQ out of 10 MCQ करेक्ट इवन इन बायोकेम बट एंड फिजियो। बट ग्रेज वाले बंदे के साथ मैं ऐसा सेम नहीं कह सकता, बिकॉज उसके पास उतना टाइम नहीं था पढ़ने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं पढ़ पाएगा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अगर बस BDC पढ़ते हो तो तुम्हें फोमो में नहीं रहना है कि यू आर मिसिंग आउट समथिंग, यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग, ट्रस्ट मी। एक्चुअली you have to be smart in first year। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास अवेलेबल हैं उसे स्मार्टली कैसे यूज़ किया जाए। मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ कि अगर तुम ग्रेज एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे हो, बस BDC और वीसिंग पढ़ रहे हो, इट्स मोर देन इनफ फॉर फर्स्ट ईयर। आगे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बहुत कुछ आएंगे। एंड लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड स्टैंडर्ड पढ़ो ही मत। यस, आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग माई ओन स्टेटमेंट नाउ कि ग्रेज एनाटॉमी बहुत अच्छी बुक है। सो यू हैव टू यूज़, मैंने पहले ही कहा था, यू हैव टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज स्मार्टली। सो व्हेन यू आर स्टडिंग, व्हेन यू आर टेकिंग द लेक्चर एंड यू आर स्टडिंग द टेक्स्ट बुक, there can be some topics, some details that have been troubling you, right? उसमें क्या होगा कि तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही है, तो नाउ यू कैन जम्प टू ग्रेज एनाटॉमी फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, एंड दिस इज हाउ यू गोना यूज योर गोल्ड स्टैंडर्ड बुक। Gold standard book are not meant to read line to line. You have to study it smartly. You have to use it smartly. And for that, जो भी टॉपिक्स तुम्हें दिक्कत कर रही हैं, टीचर से पूछो, डाउट सॉल्व करो। डाउट सॉल्व ना हो तो बुक पे जाओ, ग्रेज एनाटॉमी देखो, यूट्यूब पे देखो, अवेलेबल हैं इन्फॉर्मेशंस। ऐसे तुम अगर स्मार्टली यूटिलाइज करते हो ग्रेज एनाटॉमी को, दैट इज़ वेरी वंडरफुल। एंड ऑल्सो मुझे एक बात ग्रेज एनाटॉमी बहुत अच्छी क्या लगती है,
डायग्राम्स के लिए तुम ग्रेज एनाटॉमी को अपना रेफरेंस मान सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। मैं ये कह रहा हूँ सिंपल भाषा में, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक एंड use the Gray's Anatomy as a reference book, and reference book is not meant to read line to line. Okay, और अच्छे से रिवाइज करो एंड और फिर से बता रहा हूँ कि ग्रेज एनाटॉमी नहीं पढ़ पा रहे हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे एनाटॉमी में अच्छे नंबर आएंगे, तुम्हारा कुछ छूटेगा नहीं। हालांकि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कम रहेगा तुम्हारा उस बंदे के साथ जो स्मार्टली यूज़ कर रहा है ग्रेज एनाटॉमी को। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये है कि ग्रेज एनाटॉमी को स्मार्टली यूज़ करो, बी सेलेक्टिव वाइल स्टडिंग वाइल रीडिंग ग्रेज एनाटॉमी। और ये भी नहीं हो रहा तो बस स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक, यू आर नॉट गोना मिस अ थिंग। एंड इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं रैप अप। तुम्हारे कोई भी डाउट्स हो अगर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दो। आई एम गोना ट्राई सॉल्विंग देम, नॉट सॉल्विंग देम बट आई एम गोना डिस्कस अबाउट दैट सीनियर टू जूनियर इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 दुआओं में याद रखना। थैंक यू।